Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine and you are doing well. So sorry for that. So I hope that कि आपको जो है कल के लेक्चर की समझ आई होगी. So we start with today's lecture. So let's start with Bismillah Rahman Rahim. Today is our I think it's sixth lecture, and today is 18th April, Saturday. Okay. सो आई होप कि एनिमल बिहेवियर की थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आ रही होगी. आहिस्ता आहिस्ता करके जब हम आगे मजीद कोर्स पढ़ेंगे सो यू गाइस विल सी कि हमारे पास क्या है एनिमल बिहेवियर में. बहुत इजी सा सब्जेक्ट है, बस थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है बिकॉज इसमें सिर्फ थ्योरी इतनी ज़्यादा है, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह इसको पढ़ दें. ठीक है. Okay, so we were discussing about the types of behavior. So we have three main types of behavior. The very first is the I have told you yesterday that stereotyped behavior. So we were discussing this stereotyped behavior. So what is stereotyped behavior? It is stimulus based behavior. So any behavior that an animal or an organism show in response to any kind of stimulus, this behavior is known as a stereotyped behavior. So what is stimulus? As we all know that stimulus is any change in the environment, like any type of change. So we have discussed the type, we were discussing the types of stereotype behavior. The very first type of stereotype behavior that we were discussing is the irritability. So irritability, I have told you that it is also known as sensitivity, and it is the ability of an organism to respond to any stimulus. Like this irritability is found in those organisms that is the protozoans and porphyrins that lack central nervous system. So as they don't have any type of nervous system, so still they are able to respond to a stimulus, and this their ability to respond to stimulus is due to irritability. So I have discussed it yesterday as very in very detail. So we move to taxes. So second type of stereotype behavior that we started is taxes. So we were discussing about taxes. So I have told you that orientation movement of an organism in straight axis to any stimulus. कोई भी source of stimulation है, अगर किसी भी एनिमल ने उस सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन की वजह से अपना स्ट्रेट एक्सिस जो वो स्ट्रेट पाथ था उसको छोड़ के वो डेविएट कर जाता है, ओरिएंट कर जाता है ड्यू टू दैट सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन, दैट टाइप ऑफ behavior is known as taxes. So we have discussed that taxes may be either towards the source of stimulus or away from the source of stimulation. So it may be positive or negative depending on the type of response that animal is giving. So then we have discussed the types of taxes. So first of all, we will discuss the types of taxes on the basis of response of an animal. So these types that I have, the three types that I have explained yesterday, are the types of taxes on the basis of response of an organism, that what type of response that organism is showing. So the very first type of taxes on the basis of response of an organism is the clinotaxis. So what is clinotaxis? I have discussed that if animal compares the source of stimulation or the intensity of stimulus through its lateral sides of the body is known as clinotaxis. So we have studied that the clinotaxis is found in blowfly larvae. The second type of taxis on the basis of response of an organism is telotaxis. So telotaxis, what is telotaxis? I would explain that when there is just two sources of stimulation and animal will move toward one source, ignoring the second one and never in the median path. So this and that I have explained it a lot in the yesterday's lecture. I hope you all have understand this. The third type we have discussed was the menotaxis, that is found in the
homing ants or the common ants found in our houses. So I think I have studied up to this point. So today's we will discuss the fourth type of taxes, that is nemotaxes. So this is today we will discuss the fourth type of taxes, and that is the type on the basis of response of an organism. So let's come to the definition. It depends on complex stimulus situation and memory of an organism. ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा एक कम्प्लेक्स सिस्टम है कि इसमें हम एक तो स्टिमुलस है, दूसरा ऑर्गेनिज्म की मेमोरी भी इसमें मैटर करती है। लाइक अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल द हंटिंग डिगर वेस्प, its scientific name is Phyllanthus triangulum. So as we all know that when we type the scientific name, we must type it in italic. ठीक है, so that are the rules of binomial nomenclature. I hope you all know. So the hunting digger wasp Phyllanthus triangulum uses a number of landmarks simultaneously when returning to its nest. Removal of any one of the landmark may disturb the wasp in finding its nest. ठीक है, अब थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक हमारे पास एक फीमेल डिगर वेस्प है। इसको फीमेल डिगर वेस्प क्यों कहते हैं? बिकॉज ये अपने हाइव्स जो है वो नहीं बनाती जैसे दरख्तों और दीवारों पे दूसरे वेस्प बनाते हैं। ये क्या करती है, ये जमीन में डिग करके बरोज बनाती है और वहां पे अंडरग्राउंड केव्स में रहती है। और ये हमारे पास एक कार्निवोरस वेस्प है जो डिफरेंट अदर एनिमल्स का शिकार करके लाती है, उनको हंट करके लाती है और अपनी केव्स में ले जाती है और वहां पे अपने बच्चों पे वो भी फीड करती है और खुद भी फीडिंग करती रहती है। ठीक है, तो हमारे पास इसका क्या बिहेवियर है कि जब भी ये अपने घर से निकलती है हंटिंग के लिए, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये बहुत से अपने इर्द गिर्द बहुत से लैंडमार्क्स को मेमोराइज करती जाती है। ठीक है, ये इसकी आदत है कि जब भी घर से निकलेगी ये डिफरेंट लैंडमार्क्स यानी कि निशानियां लगाने लग जाएगी, जिस तरह हम कहते हैं ना कि भाई अगर हम अपना देखें भाई, ट्रांसफार्मर गली वाली गली से लेफ्ट लेंगे, फिर उसके बाद पहली गली नहीं दूसरी गली छोड़ के फिर राइट लेंगे, तो इस तरह जिस तरह हम निशानियां लगाते हैं अपनी डिफरेंट अपनी मेमोरी के लिए, तो ये भी जब जाती है तो भाई ये दरख्त है, यहाँ पे ये पौधा है और मेरी लोकेलिटी से, तो वो अपने जहाँ पे जब भी हंटिंग के लिए जाती है रास्ते की पूरी लोकेलिटीज में डिफरेंट साइंस को वो नोट करती जाती है। नोट क्यों करती है? बिकॉज कभी कभार जो वो शिकार करती है वो इतना भारी होता है कि वो उड़ के नहीं ला सकती। ठीक है, तो वो क्या करती है, उसको उसको ड्रैग करके लाना पड़ता है, मीन घसीट के लाना पड़ता है। शिकार चूंकि बड़ा है, उसने हंटिंग किया, वो बड़ा शिकार है, उसको लेके वो उड़ नहीं सकती। यहाँ पे जिस आपको लग रहा है वो उड़ के नजर आ रहा है, लेकिन बाज औकात ऐसा शिकार होता है कि जिसको उसे ड्रैगिंग करके लाना पड़ता है या घसीट के लाना पड़ता है। तो इन दैट केस उसको जो उसकी मेमोराइजेशन प्रोसेस है, जो उसने वो साइंस रखे थे, उसकी मदद से वो इजीली अपने हाइव तक आ जाती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है दैट इट डिपेंड्स ऑन कम्प्लेक्स स्टिमुलस सिचुएशन। और कम्प्लेक्स स्टिमुलस सिचुएशन क्या है कि अब उसने जो हंटिंग की है, जो उसका शिकार है वो बहुत भारी है और उसने अपने घर तक ले जाना है उसको घसीट के, तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अब इस केस में वो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म अपनी या एनिमल जो है अपनी मेमोरी को यूज करता है। ठीक है, अब वो साइंस लगाती है, याद करती है, मेमोराइज करती है, उसी साइंस के मुताबिक वो अपने घर में आ जाती है। अब अगर उनमें से एक भी साइन अगर उसको आप डिस्टर्ब कर दें या रिमूव कर दें, तो फिर हमारे पास ये जो फीमेल डिगर वेस्प है या फिलेंथस ट्रायंगुलम है, ये इसको अपना हाइव तलाश करने में या जो इसका अपना घर है उसको तलाश करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, लाइक अगर आप इसको आर्टिफिशियल कंडीशंस में पाल रहे हैं, ठीक है, और आपने ये निकली, इसने डिफरेंट जो है अपनी लोकेलिटी के आपने एक डिफरेंट साइंस रखे हुए थे, ठीक है, इसने उनको याद कर लिया। अब जब ये वापस आएगी और अगर आप उन साइंस में थोड़ी सी भी डिस्टरबेंसेस प्रोड्यूस करें, लाइक उसमें से एक दो साइन हटा दें या उनकी पोजीशन चेंज कर लें, तो ये इसके दिमाग की जो मेमोरी है ये उन्हीं साइंस के मुताबिक चल के आती है, तो फिर इसको अपना घर ढूंढने में मुश्किलात का सामना होता है और ये मोस्ट केसेस में अपना घर तलाश नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये एक बिहेवियर की टाइप है जिसको हम कहते हैं नीमोटैक्सिस। ठीक है, वापिस एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास जो फीमेल डिगर वेस्प है फिलेंथस ट्रायंगुलम, ये हमारे पास कार्निवोरस वेस्प है और ये हमारे पास जब भी अपने हाइव से हंटिंग के लिए निकलती है तो इर्द गिर्द की सिचुएशंस में अपने डिफरेंट साइंस को याद कर लेती है। क्यों याद करती है? बिकॉज कभी कभार
ये जो शिकार करती है वो इतना भारी होता है कि इसको उड़ के नहीं ला सकती, इसको उसको ड्रैगिंग करके लाना पड़ता है। तो फिर ये क्योंकि ऊपर से तो इसको अपना हाई वगैरह सब नज़र आ रहा होता है ना, तो ये सीधा चली जाती है। लेकिन जब इसको घसीट के लाना है तो इसने क्या करना है, इसको ऊपर से इसका अपना हाई नज़र नहीं आ रहा होता। तो इन दैट केस ये उन साइंस का यूज़ करके, वो जो इसने साइन की मेमोराइज़ेशन की थी, उनका यूज़ करके अपने घर ईज़िली पहुँच जाती है। लेकिन अगर हम उन साइंस को डिस्टर्ब कर दें या रिमूव कर दें उनमें से एक भी साइन को, तो फिर जो है इसको अपना घर ढूँढने में मुश्किल का सामना होता है। सो दैट टाइप ऑफ बिहेवियर इज़ नोन एज़ नीमोटैक्सिस। ये एम इसमें साइलेंट है, हम इसको नीमोटैक्सिस पढ़ते हैं। Now moving towards the next type of taxes on the basis of response of an organism. So that is, I think this is a fifth type of taxes on the basis of response of an organism. So let's come to the definition. The complex orientation movement of whole body influenced by both external and external stimuli or state of an organ of an organism. ये complex orientation movement है कि जिसमें हमारे पास बॉडी के एक्सटर्नल स्टिमुलाई और इंटरनल स्टिमुलाई दोनों मिल के काम करते हैं और ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाते हैं। किस तरह, मैं आपको एग्जांपल जब दूंगा तो अभी समझ आती है। लाइक ये यहाँ पे मैंने पिक्चर खींच के लगा दी है, बिकॉज ये मैं बना नहीं सकता था, बना तो लेता लेकिन बस टाइम नहीं था इतना। सो फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। One set of control fishes A, B and C and another set of ear removed fishes A prime, B prime, C prime were taken and kept in separate aquariums. क्या हुआ, उन्होंने 6 फिशेज ली, ठीक है। जो 3 फिशेज थी A, B, C वो नॉर्मल थी, ठीक है, कंट्रोल फिशेज थी या कंट्रोल ग्रुप। जो उन्होंने ली 3 और ली, जो उनका नाम रखा A प्राइम, B प्राइम एंड C प्राइम या A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट। वो 3 फिशेज जो थी उनके ईयर रिमूव्ड थे, वो नॉर्मल फिशेज नहीं थी, बल्कि उनके ईयर जो हैं, ईयर ड्रम्स उन्होंने उनको रप्चर किया होता, फाड़ा होता, लाइक वो किसी किस्म की साउंड सुन नहीं सकती, ठीक है। ये तो उन्होंने एक ले ली और इन 6 फिशेज को डिफरेंट एक्वेरियम्स में उन्होंने रखा। अब इन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। लाइक केस 1 में, when light was thrown from above to both fish A was normal and A prime was ear removed fish, ठीक है। जब उन्होंने क्या किया कि दोनों फिशेस थी, ये A प्राइम ईयर रिमूव्ड फिश है एंड दिस वन इज अ नॉर्मल फिश, दोनों पे लाइट जो है थ्रो की या प्रोजेक्ट की फ्रॉम द अपर साइड, यानी कि ऊपर से उन्होंने लाइट फेंकी। तो रिजल्ट क्या हुआ, नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द फिश अकर। तो उन्होंने बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया, कोई ओरिएंटेशन मूवमेंट नहीं हुई, दोनों ने इग्नोर किया स्टिमुलेशन को। क्या हुआ कि ए फिश और ए प्राइम फिश, जो ए फिश थी वो नॉर्मल फिश है, ए प्राइम जो है वो ईयर रिमूव फिश है। जब उन्होंने दोनों पे, ए प्राइम पे भी जो ईयर रिमूव फिश है और ए फिश जो नॉर्मल फिश है उस पे अबव ऊपर से लाइट प्रोजेक्ट की या लाइट ऊपर से डाली, तो उन्होंने कोई ओरिएंटेशन मूवमेंट शो नहीं की, सिंपली उन्होंने स्टिमुलस को इग्नोर किया। केस 2 क्या था, when light was thrown from one side of the fish B and B prime, ठीक है। अब B जो है हमारे पास नॉर्मल फिश है और B प्राइम हमारे पास एबनॉर्मल फिश है जो ईयर रिमूव फिश है, ठीक है। तो जब उन्होंने एक साइड से, when light was thrown from side to fish B and B prime, तो क्या हुआ, रिजल्ट हम देखते हैं कि both set of fishes orient at an angle from the source of stimulus। तो दोनों जो फिशेस थी उन्होंने ओरिएंटेशन मूवमेंट शो की, लाइक दोनों ने रिस्पॉन्स शो किया, ठीक हो गया। अब यहां पे यहां तक दोनों सेम आ रही हैं। अब केस 3 क्या है, सो व्हेन लाइट वाज प्रोजेक्टेड फ्रॉम लोअर साइड ऑफ बोथ फिशेस, कौन सी, सी नॉर्मल फिश, सी प्राइम ईयर रिमूव्ड फिश, डिफरेंट रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। तो हमारे पास दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट थे। रिजल्ट्स क्या थे, तीसरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखते हैं कि जब उन्होंने नीचे से लाइट थ्रो की, देयर वाज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ नॉर्मल फिश।
जो नॉर्मल फिश थी सी, उसने बिल्कुल कोई ओरिएंटेशन मूवमेंट शो नहीं की, कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया, जस्ट उसने इग्नोर किया स्टिमुलस को. बट ईयर रिमूव्ड फिश ओरिएंट एंड टर्न्स ओवर ड्यू टू लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम. लेकिन जो ईयर रिमूव्ड फिश थी वो क्या हो गई, वो ओरिएंट हुई और टर्न्स हो गई, उल्टी हो गई, ड्यू टू लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम. आपको पता होगा कि हमारे पास जो ईयर हैं, लाइक आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं. जो ईयर्स है हमारे पास, ये हमारे पास एक तो ऑडिटरी ऑर्गन है कि लाइक ये हमारे पास साउंड डिटेक्ट करते हैं. दूसरा, हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है. लाइक अगर ईयर ड्रम्स या इधर थोड़ा बहुत मसला आ जाए तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है. तो इसी तरह सेम फिशेज में भी जो ईयर हैं वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखते हैं. अब क्या हुआ है कि चूंकि इसके ईयर सही थे तो इसने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया, इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहा. लेकिन इसका चूंकि ईयर रिमूव था, तो जैसे ही इसको नीचे से लाइट प्रोजेक्ट की और इसने नीचे देखा तो बस थोड़ी सी जैसे ये हिली तो इसका इक्विलिब्रियम क्या हो गया, वो डिस्टर्ब हुआ और ये क्या हो गई, टर्न कर गई. तो ये रिस्पॉन्स जिसमें एक तो एक्सटर्नल स्टिमुलस है जो कि लाइट है, और इंटरनल स्टेट क्या थी कि ईयर रिमूव्ड है, ईयर नहीं है, और उन ईयर ना होने की वजह से वो अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाई. तो इसको हम कहते हैं ट्रोपोटैक्सिस. लाइक वी हैव सेड, अगर हम वापस से डेफिनेशन पढ़ें, द कम्प्लेक्स ओरिएंटेशन मूवमेंट ऑफ होल बॉडी influenced by both external and external stimuli or state of an organ of an organism. कि ऐसी और कम्प्लेक्स ओरिएंटेशन मूवमेंट कि जिसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस का भी रोल हो और इंटरनल स्टेट ऑफ बॉडी या इंटरनल स्टिमुलस का भी रोल हो, उसको हम कहते हैं ट्रोपोटैक्सिस. और आई होप कि हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्लियर हुआ होगा कि उन्होंने क्या किया. 6 फिशेज ली, 3 नॉर्मल थी, ए बी सी नॉर्मल थी, और ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम हमारे पास ईयर रिमूव्ड फिशेज थी. जब उन्होंने ए फिश और ए प्राइम फिश पे ऊपर से लाइट प्रोजेक्ट की तो दोनों ने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया और इग्नोर किया. जब उन्होंने साइड से, यहाँ पे भी आपको नीचे से शो हो रहा होगा, लेकिन चूंकि 3D इमेज नहीं है कि मैं साइड से दिखा सकूं कि लाइट किस तरह प्रोजेक्ट की है, तो जब साइड से लाइट प्रोजेक्ट की तो दोनों ने ओरिएंटेशन मूवमेंट शो किया. मींस ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलस की बेस पे, इसमें इंटरनल स्टेट ऑफ बॉडी का कोई रोल नहीं है. जो तीसरा उन्होंने किया कि जब नीचे से लाइट थ्रो की तो अब क्या हुआ, अब डिफरेंस हुआ कि हमारे पास जो फिश सी थी उसने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया, और जो हमारे पास सी प्राइम थी जो ईयर रिमूव्ड फिश थी उसका बैलेंस डिस्टर्ब हुआ और वो टर्न हो गई और उसने ओरिएंटेशन मूवमेंट शो की. तो अब इसमें हमें क्या कंक्लूजन मिल रही है कि हमारे पास एक तो एक्सटर्नल स्टिमुलस और इंटरनल स्टेट ऑफ बॉडी. इंटरनल स्टेट इसकी सही थी लेकिन इसकी इंटरनल स्टेट में डिफेक्ट था, तो उसकी वजह से ये ओरिएंटेशन मूवमेंट हुई है. सो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज ट्रोपोटैक्सिस. अच्छा, नाउ वी मूव टू द टाइप्स ऑफ टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस. पहले जो टाइप्स हमने 5 टाइप्स पढ़ी, दैट इज क्लाइनोटैक्सिस, टीलोटैक्सिस, मीनोटैक्सिस, नीमोटैक्सिस एंड ट्रोपोटैक्सिस. दैट टाइप्स वर ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पांस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि किस तरह का रिस्पांस दे रहा है ऑर्गेनिज्म. ठीक है, उसमें आप अगर देखें हमने सारी तकरीबन तमाम टाइप्स में हमने लाइट एज अ सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन यूज किया. मींस स्टिमुलस सेम था लेकिन एनिमल्स रिस्पांस डिफरेंटली कर रहे थे. तो अब now we move to next types of taxes that are on the basis of stimulus. So on the basis of stimulus, the very first type is the phototaxis. So phototaxis है हमारे पास. So what is phototaxis? As the name indicate, photo means light, taxis orientation movement due to any type of stimulus, sorry. The orientation movement in response to light is called phototaxis. तो कोई किसी भी किस्म की orientation movement लाइट के रिस्पॉन्स में दी जाए तो उसको हम phototaxis कहते हैं. So like all other taxes, it may be positive or negative. Like if an organism is moving towards the source of light, it is known as positive phototaxis.
And if an organism is moving away from the source of light, it is known as negative phototaxis. Like for example, amoeba show negative phototaxis, and जो हमारे पास अमीबा है वो नेगेटिव फोटोटैक्सिस शो करता है। सॉरी, मैं यहाँ उसकी डायग्राम डालना भूल गया, लेकिन पीछे मैंने आप लोगों को उसकी डायग्राम दिखाई थी अमीबा की, जो प्रोटोजोन्स और साइकोन वगैरह। लेट मी शो यू, दिस इज अमीबा। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो अमीबा है वो नेगेटिव फोटोटैक्सिस शो करता है। लाइक जब भी आप उस पे लाइट प्रोजेक्ट करोगे तो वो उससे अवे मूव करता है। ठीक है, मोस्टली छांव में रहना पसंद करता है। जो यूग्लिना है, यूग्लिना शो पॉजिटिव फोटोटैक्सिस इन केस ऑफ वीक लाइट। अगर वीक लाइट है तो वो पॉजिटिव फोटोटैक्सिस शो करती है, एंड नेगेटिव फोटोटैक्सिस इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग लाइट है तो वो नेगेटिव फोटोटैक्सिस शो करता है, लाइक स्ट्रॉन्ग लाइट से अवे मूव करती है। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। इफ द कल्चर ऑफ यूग्लिना इज एग्जामिन्ड, तो अगर हम एक पूरा कल्चर ऑफ यूग्लिना को एग्जामिन करें तो मोस्ट ऑफ द यूग्लिना विल फाउंड टूवर्ड लाइट, टूवर्ड फाउंड मूविंग टूवर्ड लाइट। सॉरी, यहाँ पे हम मूविंग लिख लें। तो अगर हम किसी भी कल्चर ऑफ यूग्लिना को हम एग्जामिन करें तो हमारे पास हमें मोस्ट ऑफ द यूग्लिना विल फाउंड मूविंग टूवर्ड लाइट, और वो पॉजिटिव फोटोटैक्सिस शो कर होंगे। बट इट अवॉइड स्ट्रॉन्ग लाइट, व्हाई? बिकॉज डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन, बिकॉज इट कैन किल यूग्लिना। कि हमारे पास चूंकि मोस्टली अगर डायरेक्ट रेज होती हैं और स्ट्रॉन्ग लाइट है, एक तो सनलाइट होती है जो धीमी धीमी आ रही होती है, तो वो तो उस हिसाब में तो ये पॉजिटिव फोटोटैक्टिक है। लेकिन अगर डायरेक्ट सनलाइट है या स्ट्रॉन्ग सनलाइट है तब ये नेगेटिव फोटोटैक्सिस शो करती है। अच्छा, नाउ केस इज कि अमीबा क्यों नेगेटिव फोटोटैक्सिस शो कर रहा है और यूग्लिना पॉजिटिव फोटोटैक्सिस क्यों शो कर रही है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2 जब इन्होंने किया, पैरामीशियम इज सेंसिटिव टू लाइट एक्सेप्ट पैरामीशियम बर्सेरिया दैट शोज पॉजिटिव फोटोटैक्सिस। हमारे पास जो पैरामीशियम है वो सेंसिटिव टू लाइट है। सेंसिटिव टू लाइट का मतलब कि मोस्टली पैरामीशियम हमारे पास वो छांव में रहना पसंद करते हैं। दे शो नेगेटिव फोटोटैक्सिस व्हाई दैट दे मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। कि अगर कहीं धूप है तो ये कोशिश करते हैं कि छांव में जाएं। एक्सेप्ट ग्रीन पैरामीशियम, ये हमारे पास एक पैरामीशियम की स्पीशी है दैट इज पैरामीशियम बर्सेरिया। सिर्फ ये जो ग्रीन पैरामीशियम है इट शोज पॉजिटिव फोटोटैक्सिस। ये हमारे पास पॉजिटिव फोटोटैक्सिस शो करते हैं एंड इट मूव टुवर्ड्स द एनी सोर्स ऑफ लाइट, लाइक सनलाइट है या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है उसकी तरफ मूवमेंट करता है और पॉजिटिव फोटोटैक्सिस शो करता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आई होगी। तो इस तरह ये जो हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास ये ऑन द बेसिस ऑफ लाइट है। तो इस तरह आगे हम डिफरेंट टाइप स्टडी करेंगे जिसमें हमारे पास सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन चेंज होती रहेगी और हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो सेम रहेगा। रिस्पॉन्स सेम कैसे है इसमें कि आइदर इट इज शोइंग पॉजिटिव or negative, like either it is moving towards the source of stimulation or it is moving away from the source of stimulation। तो वहां पे response different थे, stimulus same था। यहाँ पे जो अब है हम stimulus या different stimuli को change करेंगे लेकिन response mostly same होगा कि या तो positive show करेगा organism या फिर negative phototaxism show करेगा। Now moving to next type of taxis on the basis of a source of stimulation. So the second type is scatotaxis. So scato means dark and taxis means orientation movement. So orientation movement toward or away from darkness. So here I am not writing that from the source of stimulus. Darkness is nothing like stimulus. Darkness क्या है हमारे पास सिर्फ absence of light है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई भी ओरिएंटेशन मूवमेंट अगर आइदर इट इज टुवर्ड द डार्कनेस और अवे फ्रॉम द डार्कनेस तो उसको हम स्केटोटैक्सिस कहेंगे। सो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लाइक इफ एन ऑर्गेनिज्म इज मूविंग टुवर्ड्स डार्कनेस इट इज showing positive scatotaxis, or and if it is moving away from darkness it is known as a negative scatotaxis. Like for example the hedgehog, so this is hedgehog,
मूव टूवर्ड्स डार्कनेस। तो मोस्टली हमारे पास जितने भी अंडरग्राउंड एनिमल्स हैं या हमारे पास जो मोल्स वगैरह हैं, तो वो हमारे पास डार्कनेस की तरफ मूव करते हैं। लाइक वी हैव नॉक्टर्नल एनिमल्स। नॉक्टर्नल एनिमल्स कौन से होते हैं? दैट एनिमल्स विच कम आउट इन सर्च ऑफ फूड एट नाइट। तो वो रात को इसलिए निकलते हैं बिकॉज दे लाइक डार्कनेस और दे आर पॉजिटिव स्कैटोटैक्टिक, सो दे मूव टूवर्ड्स डार्कनेस। तो हमारे पास ये मोस्टली जो है नॉक्टर्नल एनिमल्स वो डार्कनेस को पसंद करते हैं। और जो हमारे पास डायर्नल एनिमल्स हैं दे मोस्टली शो नेगेटिव स्कैटोटैक्सिस। एंड डायर्नल एनिमल्स कौन से होते हैं? दैट एनिमल्स विच कम आउट ऑफ देयर हाउसेज इन सर्च ऑफ फूड एट या ड्यूरिंग डे टाइम। तो जो ड्यूरिंग डे टाइम एनिमल्स एक्टिव रहते हैं और हंटिंग वगैरह करते हैं या फूड की सर्चिंग करते हैं और रात को सोते हैं, तो उनको हम डायर्नल एनिमल्स कहते हैं। तो वो मोस्टली जो है नेगेटिव स्कैटोटैक्सिस शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप ऑफ स्टिमुलेशन थी। सो आई होप आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। सो टुडेज क्वेश्चन इज व्हाई अमीबा इज शोइंग नेगेटिव फोटोटैक्सिस व्हाइल यूग्लिना इज शोइंग पॉजिटिव फोटोटैक्सिस। आई हैव टोल्ड यू दैट हमारे पास जो अमीबा है वो मोस्टली अवॉइड करता है लाइट को एंड शोइंग नेगेटिव फोटोटैक्सिस, जबकि जो यूग्लिना है इट शोज पॉजिटिव फोटोटैक्टिक एक्सेप्ट जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लाइट है उसको अवॉइड करता है क्योंकि वो लाइट उसको किल करती है, लेकिन मोस्टली जो लाइट की तरफ मूव करता है और पॉजिटिव फोटोटैक्सिस शो करता है। सो क्यों हमारे पास अमीबा नेगेटिव फोटोटैक्सिस है और यूग्लिना क्यों हमारे पास पॉजिटिव फोटोटैक्सिस शो करता है? सेकंड जो क्वेश्चन है, तो हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास जो पैरामीशियम की ज्यादातर या सारी जो स्पीशीज हैं वो सारी जो हैं नेगेटिव फोटोटैक्टिक है, मींस दे मूव अवे फ्रॉम द लाइट। लेकिन सिर्फ मैंने बताया कि हमारे पास जो ग्रीन पैरामीशियम है या पैरामीशियम बर्सेरिया जो है हमारे पास इट इज फोटोटैक्टिक। तो इसकी भी आपने रीजन देनी है कि हमारे पास ग्रीन पैरामीशियम क्यों पॉजिटिव फोटोटैक्टिक है वाइल अदर स्पीशीज ऑफ पैरामीशियम क्यों हमारे पास नेगेटिव फोटोटैक्टिक है। और ये हम आपने गूगल वगैरह से सर्च करके नहीं देख देना, आप लोग ने अपने दिमाग से देना है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग के कॉन्सेप्ट लेवल्स कैसे हैं। ठीक है, सो ट्राई करें कि अपने कॉन्सेप्ट या दिमाग से सोच के इसका जो पॉसिबल आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में दे दें। जिस तरह का भी आंसर है, लाइक उस पर आपको कोई इस पर नंबरिंग नहीं मिलनी, तो वापिस मैं इसका आंसर जो है कल के या नेक्स्ट लेक्चर में या मैं वहाँ कमेंट सेक्शन में आप लोगों को दे दूंगा। सो इसके आंसर आप लोगों ने देने हैं। ठीक है, सो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड अल्लाह हाफिज़।